So, hello everyone, we are going to discuss this problem pleasant pairs from CP-31 sheet, 1200 rated questions. So, this problem says that हमारे पास एक array है जिसमें n unique integers हैं and we have to count the number of pairs of indices such that जो product of values है, product of values is equal to the sum of indexes. That is something we have to do in this problem. You can see that in the constraint you have n from 2 to 10 raised to 5 and the time we have is 2 seconds. So that means somehow the maximum complexity can be around n log n or something close to that. So as I have written that the main goal of the problem to be a of I into a of j should be I plus aj, right? So that is product should be equal to the sum of indexes. That is something we have to do. Now, if I try to, if I try to put some thoughts on constraints we have, like we can enjoy the constraints over here. How we can enjoy the constraints over here is that I की जो भी वैल्यू होगी, I तो एक इंडेक्स है अरे का, तो इंडेक्स है अरे का, तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग में I की वैल्यू 1 to n तक जाएगी, राइट? एंड देन j की वैल्यू भी 1 to n तक के बीच में ही जाएगी. एंड इफ यू सी तो I प्लस j की जो मिनिमम वैल्यू होगी, I प्लस j की जो मिनिमम वैल्यू होगी, इफ आई पुट I की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू मिनिमम, अगर I 1 है तो j उसके बाद का कुछ ले रहे हो तो दैट कैन बी एट मोस्ट 2, एट लीस्ट 2, उसके उससे कम तो नहीं होगा. तो I plus j at minimum would be 3. And if I go to the maximum side, then I plus j, you can take I to be n minus 1 and then j to be n. So at max, it can be 2 into n minus 1, right? So for the product, now you have a range. For the product, now you have a range of 3 to 2 into n minus 1. Now this particular thing is going to be our shield that we'll be using within the code to construct the answer. So what we can do is that we can pick this upper bound, and form the solution. ऐसे कि अगर हम नेव सोल्यूशन करते हैं, तो क्या होता, अगर इसका नेव सोल्यूशन सोचते हैं तो क्या होता, हम एक अरे ले लेते हैं जैसे जो क्वेश्चन में गिवन होगी एंड उस पे लेट्स सपोज कि फर्स्ट इंडेक्स चुन लिया, फर्स्ट इंडेक्स. तो ये फर्स्ट इंडेक्स अगर हमने पिक कर लिया है तो हम इसको फिर बाकी के बचे इंडेक्सेस से कंपेयर कर लेंगे और ये वाली कंडीशन ए आई इंटू ए जे इज इक्वल टू आई प्लस जे करने का ट्राई करेंगे, राइट? ये करने का ट्राई करेंगे बाकी से. तो इफ वी डू इट फॉर दिस देन इफ वी डू इट फॉर ऑल एलिमेंट्स जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड कम अराउंड ओ ऑफ एन स्क्वायर, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन 2 seconds, right? O of n square would mean somewhere around 10 raised to 10, which is not possible in 2 seconds. As in 1 second तो हमारा केवल और केवल 10 raised to 8 की complexity allowed है, right? So that is so not allowed. Then how we are going to exactly uh, make prove we are going to optimize the solution? Then we will be using this particular condition, 2 raised to n minus 1. Let's see how we are. So बाहर के एक डुअल नेस्टेड लूप ले सकते हैं हम जिसमें आई होगा, आई विल आइटरेट फ्रॉम 0 to n minus 1, राइट? एंड देन एक फॉर लूप होगा inside that, and that will iterate from I plus 1, right? The rightmost index of I से लेके n minus 1 तक. And then to our safety net to avoid this n square checking, what we can do is that अगर कभी भी ai into aj की value is going to exceed or going to get equal to even this 2 into n, as I said ai into aj max कितना हो सकता है, 2 into n minus 1, as I have shown you. क्यों 2 into n minus 1 हो सकता है? Because of this I plus j की कंस्ट्रेंट की वजह से ये 2 into n minus 1 को होना पड़ेगा एट मैक्स, उससे बड़ा होना अलाउड नहीं है. तो अगर कभी भी इसकी वैल्यू विल बी एक्सीडिंग दिस थिंग, either it get equal to 2 into n or it gets greater than 2 into n plus 1 or something like that. In this range,
वी जस्ट कैन से दैट कि इसके बियॉन्ड अब तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे करंट आई के लिए। अगर ए आई जो है अब एजे के साथ जो प्रोडक्ट दे रहा है वो 2 into n दे रहा है, राइट? तो इसके आगे जितने भी नंबर है, लेट सपोज आई से कि मैं अरे को इस तरीके से रखूंगा। जो हमारी अरे होगी वो एक पेयर्ड अरे होगी, ठीक है? एक पेयर्ड अरे जिसमें एलिमेंट्स मैं ऐसे रख रहा हूँ, ए आर ऑफ आई कॉमा आई, ठीक है? एंड इसको हमने सॉर्ट कर रखा है, इसको हमने सॉर्ट कर रखा है। तो अगर इफ वी हैव सॉर्टेड दिस अरे, देन एज यू नो दैट कि अरे ऑफ आई इंटू अरे ऑफ जे, ये जो वैल्यूज आ रही है ये, लेट्स लेट्स कॉल दिस अरे वीपी। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल अरे थी उसका यहाँ फर्स्ट एलिमेंट रखा है। अगर इनका प्रोडक्ट, ये जेथ का प्रोडक्ट इसके साथ लेने पे जो वैल्यू होगी दैट विल एक्सीड 2 into n, तब तो इसके आगे की जितनी भी वैल्यूज होगी j+1, j+2 एंड सो ऑन, वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर रेंज को एक्सीड करेंगी और वो कभी भी हमारे i प्लस जे के अलाउड रेंज से मैच नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके लिए तो आंसर पॉसिबल होगा नहीं। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन ऐड दिस एज अ सेफ्टी नेट एंड ब्रेक इट। So we can add it as a if condition over here and break the checking beyond that. So we can add it like this. As I said, VP होगा वहाँ पे एक वेक्टर पेयर जिसमें array of I और उसका इंडेक्स रखा होगा in a sorted manner. So VP of I dot first into VP of J dot first, जैसे ही एक्सीड करेगा 2 into n को या उसके बराबर भी होता है, then we can just break it. Otherwise, what we can do is that we can apply our that simple brute force condition that we were about to apply in the O of n square solution. Now we will try to understand why this solution is not O of n square, even though it looks like due to the nested loops, but it is not. We will try to understand that after this. So यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, हम just matching condition लिख लेंगे जो हमारी थी, जो given थी। क्या थी हमारे पास? जो VP of I dot first जो वैल्यूज थी अरे की, वो उनका प्रोडक्ट VP of J dot first, इनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू जो इनके इंडेक्सेस है। इनके इंडेक्सेस एज आई सेड हम लोग वेक्टर पेयर में कहाँ पे रखेंगे? सेकंड प्लेस पे रखेंगे। तो VP of I dot second प्लस VP of J dot second। अगर ये कंडीशन मीट होती है then we can do is we can increment the answer value. Here we can initialize an answer with the answer is equal to 0 and then we can go on. Now the main concern should be कि ये जो solution है it looks like there is a nested loop, है ना? यहाँ पे दो nested loop लग रहे हैं, फिर भी ये solution O of n square क्यों नहीं है? That should be the main concern. So let's try to understand that. As we can see that, A of I into A of J जो है that should be less than 2 into n, इससे बड़ा होना नहीं अलाउड है। क्यों? क्योंकि I प्लस जे की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 3 to 2 into n-1, इस वजह से इसको एक्सीड करना अलाउड नहीं है। तो फॉर एनी ऑफ ए ऑफ आई, लेट्स अच्छा ऑल्सो लेट्स राइट द लूप फॉर एन इंस्टेंस। जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा था? n-1 तक। एंड जो जे वाली लूप है वो भी कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? I+1 से लेके n-1 तक, ठीक है? और देयर वाज दिस ब्रेक कंडीशन जो थी हमारी, वी रिमेंबर दैट, यही थी। ओके, सो ए ऑफ जे, ये वाली जो सेकंड लूप है ये कब तक चलेगी? ये जो सेकंड लूप है ये कब तक चलेगी? ये I+1 से लेके n-1 तक सबके लिए नहीं चलेगी, राइट? ये सबके लिए तो चलने नहीं वाली। इट विल ब्रेक एट सम पॉइंट। व्हेन इट विल ब्रेक? whenever the value of aj breaks this condition, whenever the value of aj breaks this condition, जब भी ये कंडीशन फॉल करेगा इट विल ब्रेक, राइट? तो जब भी aj की वैल्यू आइदर इक्वल टू, जब भी हमारे aj की वैल्यू आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 into n बाई ai होगी, तब ये जो कंडीशन है ये ब्रेक हो जाएगी। मतलब फॉर ईच आई
each index for each index फॉर एवरी इंडेक्स, जब तक हमें 2 into n - ai तक की वैल्यूज मिल रही हैं, तब तक ये जो सेकेंड लूप है वो रन करेगी। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली मीन्स व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स। तो लेट्स सपोज देयर इज एन अरे, ठीक है, जिसके फर्स्ट प्लेस पे 1 रखा हुआ है, सेकेंड प्लेस पे 2 रखा हुआ है, थर्ड प्लेस पे 3 रखा हुआ है, फोर्थ प्लेस पे 4 रखा हुआ है, एंड सो ऑन, लाइक दिस nth प्लेस पे n रखा हुआ है। ठीक है, why we are doing this? We are doing this to check what will be the exact time complexity of this code. So and also why I am choosing this array 1 2 3 4 n वाली array हम क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम टीसीज को मीट करना है, तो हम एआई की वैल्यू एज स्मॉल एज रखना चाहते हैं, एज स्मॉल एज पॉसिबल रखना चाहते हैं। ठीक है, एंड एआई क्या है? एआई क्या है? पॉजिटिव डिस्टिंक्ट, पॉजिटिव यूनिक इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्लेस पे सबसे छोटा पॉजिटिव यूनिक इंटीजर तुम क्या ही रख सकते हो? 1 ही तो रख सकते हो। ऐसे ही सेकंड प्लेस पे क्या ही रख सकते हो? 2 ही तो रख सकते हो। तो इन ऑर्डर टू गेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेक्टली वी आर कीपिंग दिस, राइट? सो जैसे कि हमने इसको रख लिया, तो नाउ यू सी फॉर वन, फॉर आई इज इक्वल टू वन, फॉर आई इज इक्वल टू वन, ये जो लूप है एजे वाला, ये कब तक चलेगा? जब तक एजे की वैल्यू जो है लेस देन 2n/1 होगी, राइट? फॉर आई इज इक्वल टू 2, ये कब तक चलेगा? जब तक एजे की वैल्यू लेस देन 2n/2 होगी। ऐसे ही आई इज इक्वल टू 3 के लिए कब तक चलेगा? जब तक एजे की वैल्यू 2n/3 होगी, एंड सो ऑन। आई इज इक्वल टू n के लिए कैसे चलेगा? जब तक एजे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, सॉरी, नॉट इक्वल टू, जस्ट लेस देन 2n/n होगी। एंड जैसा कि हमें पता है कि किसी भी फॉर लूप एंड ऑल की कॉम्प्लेक्सिटीज, अगर जैसे कि एक फॉर लूप लिखा हुआ है 0 to n का, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लूप i+1 से n तक का, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं? हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं सम ऑफ इटरेशंस इटरेशंस पर आई। ठीक है, मान लो जैसे कि पहले वाले आई की वैल्यू इजिकल टू 1 थी, तो फर्स्ट आई के लिए जो इनर लूप है वो 5 टाइम चला, सेकंड आई के लिए 4 टाइम चला, थर्ड आई के लिए 3 टाइम चला। तो ये हमारी एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देता है, ना कि ये देख लेना कि जस्ट 2 लूप्स हैं तो उसको n स्क्वायर बोल देना, वो गलत होता है। एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इस तरीके से निकालते हैं। तो सम ऑफ इटरेशंस पर आई, वैसे निकालते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का ट्राई करें, तो देखते हैं वो कैसे होगा। लेट्स सी। तो फर्स्ट आई के लिए एज आई सेड कितना था? 2n/1। फर्स्ट आई के लिए था कितना वैल्यू? 2n/1। लेट्स राइट दैट। फर्स्ट आई के लिए 2n/1 था, ठीक है जी। सेकंड आई के लिए कितना था? 2n/2 था, ठीक है जी। एंड देन एज प्रोसीड, थर्ड आई के लिए भी लिख लेता है, 2n/3 था। एंड एज वी प्रोसीड, लास्ट nth के लिए कितना था? 2n/n। ठीक है, if I take 2n common from here, if I take 2n common from here, what we are going to get is a very popular harmonic series, 1 1 plus 2 1/3, फिर प्लस करते करते ऐसे 1/n, राइट? सो एज यू कैन सी दैट जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो एग्जैक्टली n स्क्वायर ना बनते हुए, आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर विद दिस हार्मोनिक सीरीज which will sum up to log n। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन स्क्वायर ना होते हुए क्या एग्जैक्टली हो रही है? 2n/log n, और उसमें से अगर कांस्टेंट हटा दिया जाए तो इट विल बिकम n/log n। सो वी कैन सी दैट जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर ना होकर के क्या है एग्जैक्टली? n/log n। इट इज ड्यू टू द ब्रेकिंग कंडीशन दैट वी अप्लाइड ओवर हियर, this this exact breaking condition that we applied। Okay, so now we have seen the logic behind this problem. We can proceed with the code. So as you can see that this is the code that I
did. In this code we can, okay, the first part would be around this thing, taking the end and then creating a vector pair as I said. उसके बाद वेक्टर पेयर में वैल्यूज फीड करी एज वन बेस्ड इंडेक्सिंग थी तो आई प्लस वन करा है यहाँ पे, एंड ए जो वैल्यू थी वो द वैल्यू ऑफ ए आई इटसेल्फ, एंड देन here we have sort here we have sorted the अरे sorted the vector pair, तो उससे क्या हो गया जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो फर्स्ट प्लेस पे आ गई एंड देन उसका इंडेक्स उसके बगल में, यहाँ पे क्या है वैल्यू और यहाँ पे क्या है इसका इंडेक्स। इस तरीके से अरे वेक्टर पेयर्स की सॉर्ट हो गई एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस थिंग। आफ्टर दैट एज आई सेड हमने आंसर एज जीरो से इनिशियलाइज कर लिया एंड देन हमारा जो है ये आउटर लूप, दिस इज आवर आउटर लूप एज सेड। और उसके बाद आउटर लूप के बाद क्या है आई हमारा कहाँ से कहाँ तक था जीरो से लेके एन तक एन माइनस वन तक, एंड फिर हमारा जे कहाँ से कहाँ तक है, जे कहाँ से कहाँ तक है आई प्लस वन से लेके एन माइनस वन तक। सो उसमें एट फर्स्ट हमने चेक कर लिया ब्रेकिंग कंडीशन एज प्रीवियसली डिफाइंड। दिस ब्रेकिंग कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टर्निंग आवर n square code into n log n. We have proved why this was needed, and then this is our matching condition which was very explicitly mentioned in the problem itself. Key product of values, this is our product of values। जो वेक्टर पेयर में फर्स्ट वैल्यू रखी होगी वो क्या है, एक्चुअल वैल्यूज जो दी हुई थी, और जो सेकंड वैल्यूज हमने स्टोर करी है वो क्या है उनके इंडेक्सेस। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ इंडेक्सेस। So this was the question. Like it was not a very trivial CB question, but it was a great question. Like you can learn a lot from this. How a simple line of code can optimize the whole thing, and people actually leave this question thinking the solution is going to n square range, not realizing that a small change of line can fix it from n square to n log. I hope you enjoyed the solution. And the best part was like in this problem, if you look at, the best part is realizing this thing. The best part is realizing this range that I wrote, this particular range. कि इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, अदरवाइज तो यू कैन जस्ट कीप ऑन रोमिंग द अराउंड द क्वेश्चन एंड वांट टू फाइंड अ वे टू स्टार्ट इट। आई होप यू एंजॉयड इट।